Hello everyone. So the given question says on hybridization of 1s and 3p orbitals we get. So if 1s orbital and 3p orbitals are hybridized, then we will get 4 sp3 hybridized orbitals, which will be exactly same with same energy. So the option A, that is 4 orbitals with tetrahedral orientation. Why tetrahedral? Because if the hybridization is sp3, then the orientation has to be tetrahedral. And the example for this can be different molecules like methane molecule CH4. It has carbon which is sp3 hybridized, that is there are 4 orbitals which are sp3 hybridized, and the molecule is tetragonal in its shape. The tetragonal or the tetrahedral, we can say anything, tetragonal or tetrahedral, the shape looks like this. So this is the tetrahedral shape. Option A will be the correct answer. I hope you understand the solution. Thank you. Hello everyone. The question says one hybridization of 1s and 1p orbital. We get option A is two mutually perpendicular hybrid orbitals. Option B is two equivalent hybrid orbital one at 180 degree. Four hybrid orbitals directed tetrahedrally, and fourth option is three hybrid orbitals in the same plane. Okay, let's start solution. 1s and 1p. Okay, 1s and 1p means 1s means only 1s. Okay, 1s and 1p means 1s plus 1p orbital intermix with each other and form sp hybrid orbital. And this sp hybrid orbital always uh, 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 this sp hybrid always at 180 degree. Okay, sp hybrid orbital, and for example that is CO2 molecule. This is also sp2 hybridized, so sp hybridized, and its shape is linear and bond angle is 180 degree. First option is two mutually perpendicular hybrid orbital. No, two hybrid orbitals. Sp means two hybrid orbitals that are formed. Two hybrid orbitals that are formed and that are mutually not perpendicular. They are at 180 degree. Okay, they are at 180 degree. First option is wrong, and second option is two equivalent hybrid orbital 180 degree. Yes, this is two equivalent hybrid orbital at 180 degree, means second option is correct. Third option is four hybrid orbital. No, we have only two hybrid orbital, 1s or 1p. We have only two hybrid orbitals. Third option is wrong. And D option, three hybrid orbital. No, we have only two hybrid orbitals. Okay, second option is correct. Thank you. Hello everyone. So your question says that carbon tetrachloride has no net dipole moment because, see, first of all, this is your carbon tetrachloride. Carbon have 4 bond pair like this. Okay, because carbon have 4 valence electrons, so it will form 4 bond pair. Okay, now if you draw the dipole, dipole will be from your less electronegative to your more electronegative. Okay, and this geometry is your ideal. This geometry is ideal, or you can say, or regular tetrahedral geometry, because all the atoms are same, your ligand are same, these ligands are same. So this type of geometry is called as ideal or regular tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. Okay. Now, see, in this, all the your dipoles are equal in opposite direction. All the resultants of all the dipole will give you a dipole moment 0. This thing you know as given no net dipole moment, because due to regular tetrahedral geometry, this option is correct. Okay, no parallel geometry is there. This option is also incorrect because similar size of carbon. Carbon is there only one. What is that? This okay. So and carbon this your to be more precise, this is your wrong. Okay, similar electron affinity of carbon and
chlorine group. Okay, so these do not deals with your dipole moment. Okay, so this thing is also wrong. The correct thing which deals is your this one. Okay, so this is how you have to approach this question. Hope you get your correct answer. Thank you. Bye bye. Hello guys, so the given question says the ion that is isoelectronic with CO is. So the isoelectronic species are those species which have same number of electron. Here the total number of electron in CO is CO, the electron in carbon is 6 and in oxygen it is 8 electron. So there are 14 electrons. Now look at the options. In option 1, Cn minus, carbon has 6 electron plus nitrogen has 7 due to negative charge plus 1 electron, that is equal to the 14 electron. So it is isoelectronic with Cu. Now for other options, for O2 plus, oxygen has 8 electron due to 2 oxygen, there is 8 plus 8 electron, and due to plus charge minus 1. So it is 15 electron. So not isoelectronic with Cu. In option 3rd, O2 minus, again oxygen 8 electron plus 8 electron due to negative charge plus 1 electron, which is equal to the 17 electron. Hence it is also not isoelectronic. Now in option number 4th, N2 plus, the electron in the nitrogen atom is 7 plus 7 due to positive charge minus 1, which is equal to the 13 electron. So it is also not isoelectronic. So the correct option is option number 1, Cn minus. All other options are incorrect. Thank you. तो गाइस हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमोंग द फॉलोइंग लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो हमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है कि लीनियर मॉलिक्यूल कौन है। मतलब लीनियर मॉलिक्यूल मतलब कि दो जो है बॉन्ड्स के बीच में हमारा एंगल कितना हो, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबका जो है स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि पहला हम ClO2 का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्लोरीन के पास हैं 7, ऑक्सीजन के पास हैं 6 और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो उसके हो गए 12 और 12 और 7 हमारे पास टोटल 19 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन को क्या करें, सेंटर में रख दें और इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया अगर, तो ये हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पे हमने 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो मतलब कि यहाँ पे हमें यूज कर लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज करने के हो गए हमारे 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन के लिए चाहिए हमें 6 और 6 12 और इसका चाहिए 4, ठीक है। तो 12 और 4 चाहिए हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट है हमारे पास यहाँ पे कितने 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि यहाँ पे एक और कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाएगी ऑक्सीजन की एक की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे या यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड लगा दें, तो अब हम इनमें जो है कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें, तो हमारे पास कितने थे 15 थे, एक और कोवलेंट बॉन्ड बना लिया हमने, तो हमारे पास हो गए 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 13 को इसमें अरेंज करेंगे तो इसको चाहिए 4, इसको चाहिए कितने, इस ऑक्सीजन को 6, ठीक है।
अब हमने 10 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए तो बचे कितने 3। तो यहाँ पे जो क्लोरीन में क्या होगा, हमारे पास एक लोन पेयर होगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये हमारा जिसमें क्लोरीन की जो ऑक्टेट देख रहे हैं हम, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और ये हमारा जो हो जाएगा लेविस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम इसकी शेप डिसाइड करें तो क्लोरीन के पास क्या है, जो सेंट्रल एटम है हमारा, उसके पास एक लोन पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से क्या होता है, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की वजह से जो ये हमारा शेप होता है इसका, वो थोड़ा सा बेंड शेप होता है। ये जो 2 ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड है ये हमारे एंगल पे होते हैं, इसको हम एंगुलर भी कहेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं है, ये एंगुलर, या इसको क्या कहेंगे, बेंड स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ClO2। तो ClO2 हमारा लीनियर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा। फिर अगर हम सेकंड देखें, सेकंड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कार्बन के पास होते हैं 4 और ऑक्सीजन के पास 6 और 2 ऑक्सीजन के हो गए हमारे पास 12। तो हो गए 16 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हमने लीनियर स्केलेटन स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस स्केलेटन स्ट्रक्चर में हमने 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो हो गए हमारे पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इनमें अगर हम देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 6, इसको 6 और इसको चाहिए 4। ठीक है, तो 6 6 12 और 4 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए 16 इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके। ठीक है, और हमारे पास हैं कितने 12। तो मतलब कि ये क्या हिंट कर रहा है, ये हिंट कर रहा है कि यहाँ पे और 2 कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ, एक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ कर दें तो इसकी कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब इनमें जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं उनको अरेंज कर दें तो ये सारे के क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और देख रहे हैं हम ये कार्बन के पास जो सेंट्रल एटम है हमारा, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सिंपली ये हो जाएगा, और जो कि हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CO2। ठीक है, और ये NO2 और SO2 भी अगर देख लें तो जो NO2 का स्ट्रक्चर होता है हमारा, अगर उसी हिसाब से करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें फिर ये करें तो जो हमारा लेविस स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें ये नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा और एक ऑक्सीजन इसका डबल बॉन्डेड होगा, एक ऑक्सीजन इसका सिंगली कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा NO2 का क्या लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें भी देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, इसके वजह से भी ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारा ये भी थोड़ा सा बेंट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा, लीनियर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा बेंट होगा। तो ये ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारा इनकरेक्ट होगा। और अगर हम SO2 देखें तो SO2 में क्या होता है, SO2 को भी अगर सिमिलरली हम स्टेप्स वाइज लेविस स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका बनेगा इस तरह। इसके जो सल्फर होगा ये सेंट्रल एटम होगा और दोनों ऑक्सीजन होंगे ये हमारे डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि सल्फर के पास हालांकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर भी यहाँ पे क्या होंगे, इसके 2 मतलब एक लोन पेयर होगा उसके पास, क्योंकि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 बच जाते हैं लास्ट स्टेप में, उसकी वजह से जो सल्फर को क्या करना पड़ता है, एक लोन पेयर अकोमोडेट करना पड़ता है, जो कि ये d ऑर्बिटल में अपना वैलेंस शेल एक्सपैंड करके कर सकता है इजीली। तो ये सल्फर क्या करता है, एक लोन पेयर अकोमोडेट कर लेता है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है,
और अगर इसका हम इसी तरह स्ट्रक्चर देखें तो ये भी हमारा बेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर और जो है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SO2 का शेप, और ये भी हमारा बेंट या फिर एंगुलर शेप होगा इसका। ये भी हमारा लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होगा।